کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا عظیم معجزہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی؟ یہ سفر معراج ایمان، رحمت اور اللہ کی بے شمار نشانیوں سے بھرپور ایک بے مثال واقعہ ہے۔ آئیے اس عظیم سفر کی پوری داستان تفصیل سے جانتے ہیں۔ معراج کا سفر۔ معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک ہے۔ یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اسراء، مسجد حرام مکے سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا سفر۔ معراج، مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ تک کا سفر۔ سفر معراج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ایک عظیم معجزہ تھا۔ اس عظیم سفر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تیاری فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم روحانی سفر کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم سفر کی خوشخبری دی۔ وہ پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مختلف مقامات کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل ایک خاص سواری براق لے کر آئے۔ براق سفید رنگ کا نہایت تیز رفتار جانور تھا جو ایک قدم وہاں رکھتا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے روانہ کیا گیا۔ یہ وہ مبارک مقام تھا جہاں سے اس عظیم اور تاریخی سفر کا آغاز ہوا۔ پورے سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، حفاظت اور مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ یہ سفر عام انسانی طاقت سے ممکن نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم مظہر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان سفر عطا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہاں جمع کیے گئے۔ ان میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام شامل تھے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی۔ یہ ایک غیر معمولی اور عظیم اعزاز تھا جس سے یہ واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، خاتم النبیین اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ امامت صرف نماز کی امامت نہیں تھی بلکہ اس بات کا اعلان بھی تھی کہ سابقہ تمام آسمانی پیغامات اپنی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پا چکے ہیں اور اب قیامت تک ہدایت کا مکمل دین اسلام ہی ہے۔ آسمانوں کی طرف معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کے بعد حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف لے گئے۔ یہ سفر معراج کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک تھا۔ آسمانوں کے دروازے کھولے گئے اور ہر آسمان پر فرشتوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دروازے کھول دیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پہلا آسمان، یہاں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ دوسرا آسمان، یہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے محبت سے استقبال کیا اور خیر و برکت کی دعا دی۔ تیسرا آسمان، یہاں حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا۔ چوتھا آسمان، یہاں حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ پانچواں آسمان، یہاں حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی جو اپنی نرم دلی اور اپنی امت میں محبوب ہونے کے لیے مشہور تھے۔
छठा आसमान, यहाँ हज़रत मूसा से मुलाकात हुई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद में नमाज़ों की तादाद कम करवाने के मशवरे में भी हज़रत मूसा का अहम किरदार रहा। साठवां आसमान, यहाँ हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई। वो बैतुल मामूर के साथ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदेद कहा और उम्मत मुहम्मदिया के लिए जन्नत में ज़्यादा से ज़्यादा नेक एमाल करने का पैगाम दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहां हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया कि इससे आगे जाना मेरे इख्तियार में नहीं। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अज़ीम एज़ाज़ अता फ़रमाया जो किसी और मखलूक को नसीब नहीं हुआ, और इसी मकाम पर उम्मत मुस्लिमा को 5 वक्त की नमाज का अज़ीम तोहफ़ा अता किया गया। नमाज़ों में तख़फ़ीफ़, 5 नमाज़ों का तहफ़ा। मेराज की रात अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदा में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 नमाज़ें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपकी उम्मत इतनी नमाज़ों की ताकत नहीं रखेगी। आप अपने रब के हुज़ूर वापस जाएं और उम्मत के लिए तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर हुए और उम्मत के लिए आसानी की दुआ की। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नमाज़ों की तादाद कम कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने फिर अर्ज़ किया कि मज़ीद तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करें। ये सिलसिला कई मरतबा जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नमाज़ों की तादाद 5 कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी अर्ज़ किया, अगर मुमकिन हो तो मज़ीद कमी की दरख्वास्त करें, क्योंकि मुझे बनी इसराइल का तजुर्बा है। लेकिन इस मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे अपने रब से बार बार दरख्वास्त करते हुए हया महसूस होती है। मैं अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हूँ। जन्नत और जहन्नम के मनाजिर सफ़र मेराज के दौरान अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के बाज़ मनाजिर दिखाए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नेकी की तरगीब और बुराई से बचने की नसीहत फरमाएँ। ये वाक़यात मुतअद्दिद सही अहादीस में मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान हुए हैं। जन्नत के मनाजिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में ऐसे बागात देखे जिनमें नहरें बह रही थीं, खुशबू फैली हुई थी और ऐसी नेमतें थीं जिन्हें दुनिया में बयान करना मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा मशरूबात की नहरें देखीं, जो अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर के करीब देखा। इनके इर्द गिर्द बहुत से बच्चे थे, जिनमें वो बच्चे भी शामिल थे जो बलूगत से पहले फौत हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं, और एक मरतबा इबादत के बाद दोबारा इनकी बारी नहीं आती। जन्नत में सोने और चांदी के महल्लात, मोतियों के घर, खूबसूरत लिबास, लजीज फल, पाकीज़ा अज़वाज और हमेशा की खुशी का मुशाहिदा कराया गया। जहन्नम के मनाजिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जिनके पेट बहुत बड़े थे और वो तकलीफ़ में मुब्तला थे। ये दुनिया में सूद खाने वाले लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जो आग के अंगारे खा रहे थे। ये वो लोग थे जो नाहक यतीमों का माल खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को गंदा और बदबूदार गोश्त खाते देखा, हालांकि पाकीज़ा गोश्त भी मौजूद था। ये इन लोगों की मिसाल थी जो हलाल को छोड़कर हराम रास्ता इख्तियार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जो अपने चेहरों और सीनों को तांबे के नाखनों से नोच रहे थे। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में गीबत करते और दूसरों की इज्जत ख़राब करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जिनके जबड़े लोहे के कांटों से फाड़े जा रहे थे। ये वो लोग थे जो झूठ फैलाते और लोगों को गुमराह करते थे। मक्का वापसी, मेराज का सफ़र। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के अजीम सफ़र में अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार निशानियां दिखाई गईं,
5 नमाज़ों का तहफ़ा अता हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर फरमाई, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा मक्का मुकर्रमा वापस लाया गया। रिवायात के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक़ के ज़रिए मस्जिद हराम वापस तशरीफ़ लाए। ये सफ़र अगरचे बहुत अजीम और हैरत अंगेज़ था, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से एक ही रात में मुकम्मल हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुँचे तो फ़जर का वक्त करीब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस अजीम वाक़े को अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हानी रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की तरफ ले जाया। इब्तिदा में ये वाक़या लोगों के लिए बहुत हैरान कुन था। कुफ़ार मक्का ने इसका मजाक उड़ाया और मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दी हुई निशानियों के मुताबिक जवाब दिए। दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने बग़ैर किसी तरद्दुद के इस वाक़े की तस्दीक की और इसी वजह से आपको सिद्दीक़ का लक़ब मिला। मेराज का ये सफ़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अजीम इज़्ज़त और तसल्ली का पैगाम था। इसमें उम्मत मुस्लिमा को नमाज जैसा अजीम तहफ़ा मिला जो बंदे को अपने रब से जोड़ने का ज़रिया है। सबक मेराज का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की मदद फरमाता है, मुश्किलात के बाद आसानी अता करता है और नमाज के ज़रिए बंदे को अपने करीब होने का मौका देता है।